हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति प्रागटा। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे +1 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is laws of chemical combinations, and first law of chemical combination is law of conservation of mass, which was given by Antoine Lavoisier, and it states that during any physical or chemical change, the total mass of the products is equal to the total mass of the reactants. Means किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जो प्रोडक्ट का टोटल मास होता है वो इक्वल रहता है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं that mass can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. So this law was proved by Landols experiment. तो लैंडोल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो सॉल्यूशंस ली. फर्स्ट सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट एंड सेकंड सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड, और उन्होंने इन दोनों ही सॉल्यूशंस को एक एस शेप ट्यूब में डाल दिया जो कि सील थी. फिर उन्होंने रिएक्शन से पहले ट्यूब को वे कर लिया था, और उसके बाद जब रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट्स बने सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, फिर उन्होंने दोबारा से उस ट्यूब को वे किया. तो उन्होंने पाया कि दोनों ही टाइम जो वेट था ट्यूब का वो सेम था. ठीक है, जिसका मतलब जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है वो इक्वल रहता है रिएक्टेंट के टोटल मास के ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. ओके. Next law is law of definite proportions, which was given by Joseph Prost, and he stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. तो उन्होंने दो सैम्पल्स के साथ में काम किया था. दो सैम्पल्स उन्होंने लिए थे क्यूप्रिक कार्बोनेट के. तो एक क्यूप्रिक कार्बोनेट का नेचुरल सैम्पल था और दूसरा क्यूप्रिक कार्बोनेट का सिंथेटिक सैम्पल था. तो उन्होंने पाया कि जो एलिमेंट्स है क्यूप्रिक कार्बोनेट के, उनकी परसेंटेज सेम थी दोनों ही सैम्पल्स में. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल में. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस विच वॉज गिवन बाय डॉल्टन इन 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, then masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. मतलब क्या है इसका कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो उस एक एलिमेंट का मास जो कि कंबाइन कर रहा है with the fixed mass of the other element are in ratio of small whole numbers. तो इसको एग्जाम्पल से आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 grams of hydrogen reacts with 16 grams of oxygen to form 18 grams of water. And similarly, 2 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen to form 34 grams of hydrogen peroxide. So here the masses of oxygen in both the reactions. In first reaction, mass of oxygen is 16 grams, and in second reaction, mass of oxygen is 32 grams, which combine with the fixed mass of hydrogen, which is 2 grams, bear a simple ratio. So here you can see the masses of oxygen in both the reaction bears 1:2, which is a simple whole number ratio. Okay. So this is law of definite proportions. Now next law is Gay-Lussac's law of gaseous volumes, which was given by Gay-Lussac in 1808, and he observed that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. For example, 100 ml of hydrogen is combining with 50 ml of oxygen to form 100 ml of water. So the volumes of hydrogen and oxygen which combine bear a simple ratio of 2:1. Okay. Now next law is Avogadro's law. Avogadro proposed that equal volumes of all gases at the same temperatures and pressures should contain equal number of molecules. So here 2 volumes of hydrogen combining with 1 volume of
oxygen to form 2 volumes of water. The volumes of hydrogen and oxygen which combine to form water is in the ratio of 2:1:2. So this is Avogadro's law. Then next is Dalton's atomic theory. तो ये theory आप खुद से कर सकते हो, इसमें कोई problem नहीं है. Now next topic is atomic and molecular masses. So atomic mass क्या होता है? Atomic mass is mass of an atom पर 1/12 of mass of कार्बन एटम. ठीक है, तो जब भी हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने जाते हैं तो हम यहाँ पर 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं. ठीक है, और ये जो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम है इसको हम 1 एटॉमिक यूनिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. ओके, तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो हम इस वैल्यू को एज अ स्टैंडर्ड लेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मास कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन का इन एटॉमिक मास यूनिट. तो जो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स अपॉन. अब यहाँ पर जो ये 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम की जो वैल्यू है, यानी कि जो 1 AMU की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24. तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद में जो मास आ जाएगा हाइड्रोजन का इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो इट विल बी 1.008 एटॉमिक मास यूनिट. और इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास. ओके, सो दिस इज एटॉमिक मास. नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास. तो जैसे किसी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं, मतलब आइसोटोप्स की फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं कोई एलिमेंट्स, तो वहाँ पर हमने जब एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 जो है ये कार्बन के आइसोटोप्स है. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी रिलेटिव अबंडेंस एंड इनके एटॉमिक मासेस को. तो जब हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है कार्बन का तो कैसे करेंगे? जो रिलेटिव अबंडेंस है इन आइसोटोप्स की उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके एटॉमिक मासेस से. ठीक है, और फिर इनको आपस में ऐड कर देंगे तीनों आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस एंड एटॉमिक मासेस की जो मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी उनको आपस में ऐड कर देंगे. तो ऐसा करने से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो मास है कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है जो वो 12.011 म्यू आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. तो जो एटॉमिक मासेस की जो सम है, किसके? एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की जो सम है, जितने भी आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के सम को हम उसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे. It is obtained by multiplying the number of its atom and adding them together. तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लो, मीथेन का एटॉमिक मास यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर कैलकुलेट किया है. तो यहाँ पर आपका कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है. आपको ये एटॉमिक मासेस तो याद ही करने पड़ेगी पीरियोडिक टेबल से, तभी आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास और ये सभी चीज़ें. तो कार्बन यहाँ पर कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है ना, मतलब कार्बन एक ही है और एक कार्बन का मास होता है 12. तो 12 इंटू 1 12 ही हुआ, प्लस अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1. ठीक है, तो फिर अब ऐड करो 12 एंड 4 को, कितना आएगा? 16 म्यू. तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16 म्यू होता है. उसी तरह से वाटर का कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स है ना, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अब 2 + 16 करो तो कितना आएगा, 18 म्यू आएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, वो होता है 12, और यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है कार्बन के। फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पर 12 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के प्रेजेंट, तो फिर 1 × 12 प्लस, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एक ऑक्सीजन का मास होता है वो 16 होता है, और यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो आपको जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 72 + 12 + 96। अब इनको ऐड करोगे तो फिर 180 म्यू आ जाएगा आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। सो मोल क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 grams or 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट होती है मोल, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस contains as many particles or entities as there are atoms present exactly in 12 grams of the carbon 12 isotopes. So number of atoms in 1 mole कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल 12 ग्राम्स पर मोल ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 एटम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो एक मोल में आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, और इसको Na से डिनोट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इज मोलर मास। तो जो मास होता है आपके एक मोल सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है उसको जब ग्राम्स में लिखा जाता है तो उसे उसका मोलर मास कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम्स पर मोल। मतलब जो आपका मास है मॉलिक्यूलर मास उसको आप ग्राम्स पर मोल में लिख दो, वो उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, तो सोडियम का जो मास होता है एटॉमिक मास वो होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35। तो दोनों को ऐड कर दो तो 58 ग्राम पर मोल आपका NaCl का मोलर मास आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। सो जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है इट गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है आपका कंपाउंड में उसकी परसेंटेज के बारे में हमें बताता है परसेंटेज कंपोजिशन। और यहाँ पर हम मास परसेंटेज निकालते हैं एलिमेंट्स की, जो भी एलिमेंट्स आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर के केस में देख लो तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब जितना मास उस एलिमेंट का प्रेजेंट है उस कंपाउंड में उसको डिवाइड कर देंगे उस कंपाउंड के पूरे कंपाउंड के मोलर मास से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है,
तो अब जो वाटर है, वाटर के केस में कैलकुलेट करते हैं, तो जो वाटर है उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम। ठीक है। और जो अब हमने मास परसेंटेज निकालनी है ना इसकी, किसकी निकालेंगे, हाइड्रोजन की, वाटर में से हाइड्रोजन की निकालेंगे पहले। तो आपको पता है हाइड्रोजन का मास होता है 1। ओके। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 अपॉन 18। 18 क्या है, मोलर मास है, तो 2/18 × 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 11.1% आ जाएगी इसकी मास परसेंटेज, किसकी, हाइड्रोजन की। अब उसी तरह से ऑक्सीजन का देख लो, तो ऑक्सीजन का आपको पता है इसका मास होता है 16, और मोलर मास जो वाटर का होता है वो होता है 18। तो 16/18 × 100, तो जब कैलकुलेट करोगे तो 88.8% आ जाएगा ऑक्सीजन की मास परसेंटेज। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, आपको मोलर मास निकालना होगा जो आपको गिवन जो कंपाउंड है क्वेश्चन में। तो आपने सोडियम सल्फेट का सबसे पहले मोलर मास निकाल देना है। आपको इनके एटॉमिक मासेस याद होगे तभी कर पाओगे आप ये कैलकुलेट। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है ना सोडियम के प्रेजेंट, तो 2 × 23 + 32 किसका होता है, 32। जो आपका सल्फर है ना उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। उसके बाद प्लस यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है ऑक्सीजन के, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, तो 4 × 16। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका 142 आ जाएगा इसका मोलर मास, किसका, सोडियम सल्फेट का। अब आपने क्या करना है, मास परसेंटेज निकालनी है सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन की। तो आपने सबसे पहले सोडियम की निकालनी है। तो सोडियम का जो आपका एटॉमिक मास था वो 23 था, तो 2 × 23, 2 है ना यहाँ पर सोडियम, अपॉन 142 जो कि मोलर मास था सोडियम सल्फेट का, इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 32.3% आ जाएगा आपका इसकी परसेंटेज कंपोजिशन सोडियम की। फिर उसी तरह से आप सल्फ़र की निकालोगे तो सल्फ़र की आपकी आ जाएगी 22.5, और ऑक्सीजन की आ जाएगी 45.0। तो ये सिंपल है, बस आपको इतना, आपको ना बस एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए एलिमेंट्स के, और साथ में आपको कैलकुलेशंस अच्छे से करनी आनी चाहिए, बस फिर आपका आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपने क्या करना है, आपने ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन, ग्लूकोज में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना उनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। ये आप खुद से ट्राई करना, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या होता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला। एंड एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है वेरियस एटम्स की जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपका जो बेंजीन है उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है। ठीक है। यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है, 1:1 में प्रेजेंट है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C6H6 और CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है। जो अब ये एग्जैक्ट नंबर्स बताता है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। तो ये है आपका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस। अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 grams. What are its empirical and molecular formulas? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स। तो हम जो हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हम मानकर चले गए 100 ग्राम्स। तो अब हमने मास परसेंटेज को यहाँ पर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो फिर
100 ग्राम्स में आपका हाइड्रोजन होगा 4.07 ग्राम, और कार्बन होगा 24.27 ग्राम्स, और क्लोरीन होगा 71.65 ग्राम्स। ओके। और फिर स्टेप 2 क्या होता है, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, जो आपका सैंपल में गिवन मास होगा एटम का, उसको डिवाइड करेंगे हम उसके एटॉमिक मास से। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे 4.07 ग्राम्स को डिवाइड करेंगे 1.008 ग्राम से, तो आपके 4.04 मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। और उसी तरह से मोल्स ऑफ कार्बन निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन का जितना क्वेश्चन में गिवन है मास एलिमेंट का अपॉन उसका एटॉमिक मास, इस तरह से निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आपका 24.27 ग्राम्स को डिवाइड करेंगे 12.01 ग्राम्स से, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास 2.021 मोल्स आ जाएंगे कार्बन के। उसी तरह से हम मोल्स ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करेंगे जब, तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है मास इसका 71.65 ग्राम्स, और इसको डिवाइड करेंगे हम 35 ग्राम से, जो कि आपका एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। तो आपका जो कितना आ जाएगा 2.021 मोल्स आ जाएंगे क्लोरीन के। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 2 है, तो कन्वीनियंस के लिए हम ये पॉइंट वाली टर्म्स रहने देंगे और सीधा इसको लिखेंगे 422। तो अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट आपका नंबर कौन सा है, 2 है, तो इन तीनों को अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका 2:1:1 आ जाएगा। किसकी है ये, जो 2 है ये हाइड्रोजन की है, और 1 कार्बन, और ये जो दूसरा 1 है ये क्लोरीन। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है इस रेशियो के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो 2, कार्बन 1 और क्लोरीन 1, तो हम इसको H2CCl या फिर CH2Cl इस तरह से लिख सकते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला। फिर फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या है, राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आया है ना, हमने उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, जो आपका कार्बन है उसका मास होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है मास, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 + 35 किसका एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का। तो इसको ऐड करके 49 ग्राम, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ने आपने क्या करना है, जो आपका मोलर मास था जो क्वेश्चन में गिवन है उसको उससे हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस 2 को हम n लिखेंगे। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला को बाय n। तो जो n हमारे पास कितना आया, 2 आया, तो अब एम्पिरिकल फार्मूला को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H4Cl2। ठीक है। तो इस तरह से आप एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। तो जब सॉल्यूशंस में रिएक्शन होती है तो कंसंट्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे वो है मास परसेंटेज। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूट जो है कितना सॉल्यूट है आपका 2 ग्राम्स। ठीक है। सॉल्यूट का जो मास है वो 2 ग्राम्स है, और सॉल्वेंट का मास है आपका 18 ग्राम्स। तो अब सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 2 ग्राम्स, और सॉल्यूशन का मास आपका आ जाएगा फिर 20 ग्राम्स। तो 2/20 × 100 इस तरह से हम मास परसेंटेज निकालेंगे।
तो यहाँ पर सब्सटेंस ए की जो मास परसेंटेज है वो 10% आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का, मतलब कोई हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी बी है, मतलब कंपोनेंट ए एंड बी से मिलकर के बना है कोई सॉल्यूशन। तो अगर हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का, तो हम उसको एक्स ए से डिनोट करेंगे। और कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को Na प्लस Nb से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से अगर हमने कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये जो एक्स ए एंड एक्स बी है, जो सम होती है दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस की, वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। सो ये था मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सोल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो आपके सबसे पहले आपने क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जितना आपको क्वेश्चन में गिवन है मास, उसको आपने डिवाइड करना है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होगा उससे। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास तो 40 ग्राम्स आएगा वो। और क्वेश्चन में कितना है इसका मास दिया हुआ? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम को डिवाइड करो 40 से, आपका 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 0.1 मोल को डिवाइड करना है 250 ml से, जो कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है मिलीलीटर में, क्वेश्चन में दी हुई है ना ये। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपका 0.4 पर मोल आ जाएगा, या आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 0.4 मोलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसको आप और अच्छे से पढ़ोगे +2 क्लास में। अभी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, so that's all about this video. If you found this video useful, then please do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for new updates. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।